गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे फिर से एक बार वडनगर म्यूज़ियम में। आप देख सकते हैं क्या बनाया है, क्या खर्चा किया है। सामान्य तपास। कई सामान साथ आ रहा जोड़े आपड़ा जोड़े के साथ फोटो पाड़ो। पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती है। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्त, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही आनर्त क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परकोटा चुनवाकर एक नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मोल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती हैं इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन दो मोहरों पति गए तो इश्यू છે। અહીંયા બધા સેટિંગ છે ને એમાં બેસી જાઓ। શો ચાલુ। અહીંયાથી હવે ખાલી પાસ આઉટ થવાનું રહેશે કે વડનગરના કેટલાક નામ પડે તમને ત્યાં જોવા મળશે। ત્યાંથી પાસ આઉટ થઈ અહીંયા આવી જાઓ। અહીંયા આની એવી એક્ટિવિટીઝ રમીને આપણે હવે થર્ડ ફ્લોર જવાનું રહેશે। अंदर नहीं जावा वही थी पूरा
ત્યાં નહીં જવાનું. હજી આવશે, શાંતિ રાખ. વિડીયો ચાલુ રાખ. એ તો લોકો જોઈ જોઈને આવ્યા છે. એ તો આગળનું. કે આગળનું ગ્રુપ છે. આ ફોન તમે જોડ્યો છે? જોડી ના જતા. આ એસી આ રે બધું. આહો ઓસા રૂફટેલ નેલ્સ. અચ્છા, આ પહેલાંના સમયની ટેરાકોટાની બનેલી 1 થી 4 સેન્ચુરી. પહેલું છે બીજી સેન્ચુરી, બીજી સેન્ચુરી. આ છે ને 2000 વર્ષ 2200 વર્ષ પૂરું પહેલાંનું. એટલે આ 2000 વર્ષ ચાલુ થયા ને એના પહેલાંના એના આગળ 200 વર્ષ અગાઉનું એમ. બીજી સેન્ચુરી BCE, બેક સેન્ચુરી એમ. બેક સેન્ચુરી બીજી અને બેક સેન્ચુરી ફર્સ્ટ. આ પહેલી, આ બીજી. કેટલું જૂનું હશે, કાર્બન ડેટિંગ કર્યું. અને ત્રીજાનું રૂફટેલ. આ નળિયું, હા નળિયું રૂફટેલ ટેરાકોટાનું બનેલું. પછી આ 1 થી 4 સદી સુધીનું છે. અને આ છે નેલ છે, એક પ્રકારના નાક. આયર્ન નેલ, અંબાઘાટ, અનાજ ગોડાઉનનું છે. નેલ અંબાઘાટ, 11 થી 14મી સદી સુધીનું છે છેલ્લું રીલ. બરાબર ને. આ છે એક પ્રકારના નળિયા લાકડાની ફ્રેમ કરતા હતા. ટેરાકોટાને ઇન્ટરલોક કરીને આ બાંધકામ તકનિકનો અનુભવ લો. અચ્છા, એટલે મને અડી હે કાયમ. નહીં યાર, બ્રન્ટ બીક એટલે હળગાયેલું છે. અને આ શું ને એનું મહાયાતકા સીલ આઇવરી 1 થી 4 સદી સુધીનું છે. આ કોઈ સિક્કો છે ને? તારા ફોનથી ફોટો તો પાડ. હા, બધી વસ્તુના ફોટા પાડ. अच्छा, पीरियड वन ब्रिक रेप्लिका. From period 1 to 3 change size observed.
આ એમને એમ રાખ્યું છે, કદાચ હું ગોઠવ્યું હોય એવું નહીં. ગોઠવ્યું કે એમને એમ રાખ્યું. अच्छा, तो आ आनंदपुर राजना सील टेराकोटाનો ફોટો. બેંગલ્સ આવી ક્યાં છે તો અહીંયા જોવા મળે છે. આ વાળી બેંગલ્સ અહીંયા છે, કીર્તિ તોરણ છે તો અહીંયા છે. એવી રીતે આ બધા આર્ટિફિશિયલ છે શું મૂકવાના અહીંયાથી ફોટોશૂટ કરાવવા જવા દે ના. પહેલીથી ચોથી સદી સુધીનું છે. પેલી દિવાલ ખોદકામ કરતા મળીને તો એનો અર્થ એનો અર્થ એ છે કે અહીંયા અમુક વસ્તુઓ જે મૂકી છે ને એ એમ નેમ છે. આપણા મનમાં કે ખાલી સુશોભિત કરવા માટે મૂક્યું, ડેકોરેશન માટે, પણ એવું નહીં. વાત સાચી છે, જે વસ્તુ જેમ હતી અમે તેમ એમ જ રાખી છે વોટર મેનેજમેન્ટ માટે. કોઈ વસ્તુ સ્કીપ ના થઈ જાય જોજે જોવાની. આપણા જોડે આ તો લોકો જેટલે પોકી છે એ આપણે સ્પર્ધા નહીં કરવાની. ખબર છે આનો વિડીયોમાં બધું બોલ. બસ સ્પ્રેડ હેડ આયર્ન 1 થી 4 સદીનું. બોલો આવડી આવડી નાની વસ્તુઓ મળી. નાઈફ, આ નાઈફનો હિસ્સો છે. એક નાનું નાઈફ હોય ને, પોકેટ નાઈફ. આ શું આ તો દિવાલનું મોડલ છે બરાબર. આવી એ એક પેલું એ છે. અચ્છા, આ જે કોઈ કોડિયાની રમત હશે ને, કોડિયાની રમત એનું મળ્યું. સ્ટોન રમતની સામગ્રી, રમતના ટુકડા સાથે હાથીદાંત હાડકા માટે પથ્થરની મધ્યવર્તી વૃદ્ધ બધું રમતનું હતું. માર્બલ
માર્બલ સ્લિંગ બોલ માર્બલ સ્લિંગ અમારે ઓગળી રહી એ સ્ટીલનો બ્લેક રહ્યો કે કેસરી સિલ્વર કલરનો ગ્રીન સિલ્વર નહીં દેખાતો આ ગુરુ જેવો રહે એના ઉપર રહે આ સ્ટીલનો નહીં દેખાતો કે ચાંદીનો છે આવું પાસા અને એક પ્રાચીન પાસા બધું સતરંજ જો લૂડો રમવા લઈ લો ને ચક્કડું વહીથી જ લઈ લઈએ બસ આખી રાત રમે જઈએ જો પેલાના તો ડિઝાઇન બી છે અમુક અમુકમાં તો મોસ્ટલી ડિઝાઇન છે મોસ્ટલી એના પર ડિઝાઇન છે ડાઇસ છે અમુક કલર થઈ ગયેલા થોડા થોડા માટીના લાકડાના જો ને કેટલા વર્ષ થયા આના 1000 વર્ષ થઈ ગયા ડાઇસ 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 બધા ડાઇસ જ છે ગાડાના પડ્યા કેટલા ડિફરન્ટ ટાઈપના all is different type of wheels toy wheels ઓકે તો આ મળી હે ને કડીથી મળે છે ને કડી મહેસાણ કોપરનું ચૂડું લખેલું ભીમદેવ બીજાની જો આટલું ડિટેલથી કોઈ જોવા જ ના આવે તો બધા જતા રહ્યા ફટફટ જોઈને એ લોકોને ખબર જ નહીં પડી હા આજ ઊભું રહીને જોવાનું છે જો છોકરીઓ એટલું મસ્ત રમતી હતી આ ત્યાંનું એનું જીવન બતાવ્યું છે પહેલાંના વડનગરનું બનાવતા તે પણ બનાવે હું નહીં બનાવતી હું તો જોઉં છું અર્થક્વેક વખતે સ્ટ્રક્ચર પેલું ડેમેજ થયું ને રહ્યું છે અચ્છા તો આ એમને એમ છે બધું એમ ને આ જ્યાંથી મળ્યું છે એના સામે ફોટા છે वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे आनर्त, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही आनर्त क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की बोतलों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं।
क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से हैं। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परकोटा चुनवाकर एक नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मोल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती हैं इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन 2 मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनो प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। 2 मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख आनर्द के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग आनर्दपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में एका, कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं, दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौखनी मछली आकार के ये मर्तबान या लंबे घड़े कीमती द्रव्य, दवाएं, सुलह आदि मेसोपोटामिया से यहां तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहां के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहां से गुजरे और कुछ ने यहां जड़ें भी जमा ली। यहाँ सनातन धर्मी मंदिर हैं, तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहाँ स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नाम तो पुलो यानी आनंदपुर में सम्मितिया विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासगोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वडनगर में बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने 2री शताब्दी में क्षेत्र को आनर्द संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर
दूसरी शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वावों यानी सीढ़ीदार जल कुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से 1 सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारू गुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता संस्कृत व्याकरणकार दंडी, ताना रीवी जैसी गायिकाएं या यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण। ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण नगर है। આજે જોયું પસંદ કરો ઉભારો કરો વધારે પેલી એ થઈ જાય. નેક્સ્ટ ટાઈમ નેક્સ્ટ ટાઈમ બધી ગેમ સમજો પહેલાં 9 વાગે આવી જવાનું. હા, આ તો આખો દાડો જોવાના માટે. What are you taking? ફોટો પાડો ને આવા જ છો.
મિનિએચર બોટ આ છે. અચ્છા આ કોઈ ગેમ ટાઈપનું છે. શું નાખવાનું હવે? હા આનું સેન્સર બી ચડાવવાનું. નાનો કળશ. આ શું છે લે? કેટલી નાની નાની મૂર્તિઓ મળી છે એકદમ. આ વાળી તો સૌથી નાની છે. લક્ષ્મી અને નારાયણની. વિષ્ણુ લખી દીધું. વિષ્ણુ નારાયણ. Buddha's head. તૂટેલો છે Buddha's head. કેટલા આગળ જોઈ લે ને. આ શું છે લે? હે મોટિકા સ્તૂપા એટલે વોટી સ્તુપા. બાઉલ છે. અચ્છા પેલા એક પ્રકારનું બાઉલનું છે. લક્ષ્મીનારાયણ 400 પાર્વતી ઓ એટેન્ડન્ટ ગણેશ સર. જોવા જેવું તો તને આ જ છે ને.
અચ્છા, તો આ એમને એમ છે બધું એમ ને. આ જ્યાંથી મળ્યું છે એના સામે ફોટા છે. ઓ ઓકે, તો અહીંયા દરવાજાનું રહસ્ય બતાવ્યું છે. દરવાજા ઉપર જે પ્લેટો લગાવી છે સ્ટ્રક્ચર છે દિવાલોનું. હા હા, કંઈ વાંધો નહીં. પેલો શો ચાલુ થાય. धीरे धीरे संसार के हर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा अपनी अपनी भौगोलिक, मानसिक, सामाजिक हमारे यहाँ घर और मंदिर में अंतर करना कठिन रहा है। जहाँ कोटि कोटि प्रकार के देवी देवता, आध्यात्मिक सिद्धांत और सामाजिक प्रथाएं मानी और पूजित रही हैं। मोक्ष अर्थात मोह बंधनों से मुक्ति तमाम भारतीय धर्मों का लक्ष्य रहा है। वडनगर में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ग्राम्य देवताओं के अलावा वैदिक रीतियां भी प्रचलित रही।
यज्ञ, होम, हवन आदि की परंपरा का प्रतीक यहाँ भूमि से निकले हजारों साल पहले के एक समाधिष्ठ योगी के अस्थि शेष हैं। और इस अमूर्त आस्था के मूर्त प्रमाण हमें 2500 साल से अधिक लंबे समय के हर युग से मिलते हैं। इस निरंतर शहर में बहुत से मतों, धर्मों, सिद्धांतों, आस्थाओं को देखा, परखा और माना है। ईसा से 250 साल पूर्व सम्राट अशोक ने जब जूनागढ़ में अपना शिलालेख स्थापित किया, तभी सबसे पहले बौद्ध धर्म के सिद्धांत यहाँ आए होंगे। किंतु निश्चित ही कुछ समय बाद बुद्ध का संदेश और बौद्ध मत वडनगर का एक अटूट हिस्सा बन गए। सन 641 में चीनी यात्री यून सांग ने ओ नाम तो જોવા નહીં દેતા તમે आनंदपुर में स्थित संवित्या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास करने के बारे में लिखा है। घासपोल द्वार के निकट बना बौद्ध विहार और अन्य अवशेष यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाते हैं। भिक्षुओं की सुरक्षा के लिए उनका विहार नगर के अंदर ही बनाया गया था। एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी इस हाटकेश्वर क्षेत्र में नागर ब्राह्मणों की केंद्रीय भूमिका। नागर ब्राह्मण सदियों से यहीं रहकर जब तक अध्ययन अध्यापन करते और इसके बदले कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेते थे। इसलिए राजाओं द्वारा इन्हें भूमि दे दी जाती थी। स्कंद पुराण में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने उमा से विवाह के लिए नागरों को उत्पन्न किया था। फिर प्रसन्न होकर इन्हें हाटकेश्वर नाम का स्थान वरदान के रूप में दिया था। ये लोग सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते थे और कुछ के अनुसार मिस्र, बेबीलोन, ब्राजील, काबुल, चीन तथा कंबोडिया जैसे देशों तक यह लोग शैव मत स्थापित करने गए थे। अटल आस्था के बावजूद वडनगर वासी कभी किसी एक मत के लिए कट्टर नहीं हुए। तभी तो एक समय जैन धर्म ने भी यहाँ अपनी जड़ें जमाई। कल्पसूत्र और नवकार मंत्र के पाठन उच्चारण के सबूत यहाँ मिलते हैं। तरंगा के जैन मंदिर और देरासर भी इस बात का प्रमाण है। ग्राम्य देवताओं और अन्य देवियों की पूजा भी वडनगर में लगातार होती रही। लज्जा गौरी, जिनके चित्रण में सर की जगह कमल का फूल होता है और जननाग के चित्रण पर जोर होता है, प्रचुर फसल और संतान के लिए पूजित होती है। वहीं शाकंभरी देवी हरियाली उर्वर धरती के लिए पूजी जाती है। शीतला माता, अमितेर माता, करवट देवी, मेलड़ी माता आदि अनेकों देवियां भी पूजित अर्चित रही हैं। शर्मिष्ठा के किनारे होने वाले अनुष्ठान उन्हीं प्राचीन परंपराओं के चिन्ह हैं। नगर के 6 द्वारों के नाम भी अधिकतर ग्राम्य देवी
जलपोत भी होता है। समुद्र यात्राओं पर जाने वाले गुजराती नाविकों में सिकोतर माता का बड़ा सम्मान है, जिन्हें हरसिद्धि माता कहते हैं। उनका मुख्य मंदिर गुजरात में खंभात के पास है। कुछ लोग मानते हैं कि सुदूर हिंद महासागर में एक द्वीप पर भी सिकोतर माता का एक मंदिर स्थित है। सल्तनत और मुगल काल में अन्य मतों का भी कभी वडनगर में प्रवेश हुआ, जिनमें इस्लामिक पीरी शामिल थी। हमारे ग्रंथों में कहा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हर किसी का मन, विचार, मत, आस्था अलग अलग होती है, किंतु जो सबको साथ लेकर चले वही सफल और लंबे समय तक वर्धमान होता है। वडनगर की लंबी उम्र और उसके एक सनातन शहर बनने के पीछे यही वो आत्मा है, वडनगर शहर। પછી જઈએ જો બાઉલ જ એમને છે ચોટાડી નાખી બનાવ્યો છે એક. આ બધી મહેનત છે, પૂરા તત્વ ખાતા નહીં. આ બધાનો મતલબ હું ખબર કે આ આટલા વર્ષનું છે એમ, આટલા વર્ષ જૂના આ વસ્તુઓ હતી એમ, એટલે યુઝ થતી હતી એમ. હા એટલે આ ડેકોરેટ ભાતવાળા એમ, ભાતવાળા હોય ને. આ કોળીઓ તો જો આ શું કામમાં આવતું હશે, તું દોડ નહીં, આ શું કામમાં આવતું હશે એમ તો. એનું તો પાણીએ ના ભરાય. આવડા નાના નાના શું મૂકતા હશે એ લોકો. આ તો જાણે ઓગળ્યું હોય એવું લાગે છે. આ હેન્ડલ છે કોણ? આ હેન્ડલ છે પકડવાનું. ભોજન પીરસવાનો વાસણ. હા તો જો એના બાજુમાં એ બી જો. એવું ઝેર પીવા કામમાં આવતું.
હાથ ફેરવો અને વિવિધ સમયના ભોજનને જાણો. અચ્છા, અચ્છા. તું એક જ કર. હું જ કરું. એમ નહીં, આમ કરવા. મને આપણે હા તો હમણાં સિક્કાઈ ખાતા કોણ? એમ નહીં, ત્યાં જો એ છે માર્કેટ પ્લેસમાં 7 અલગ અલગ કાર્ડના બજારો વિશેનો છે આ છે બધું. ઓહો, મોટી મોટી. હા તો શું છે તપેલો કોણ? હા, કોઠીઓ જો, કોઠીઓ અનાજ ભરવાની કોઠીઓ. 2-4 તો આપણે હતી, કોઈ લાવી દેવા જોઈએ હતી. ઓ બધું સંગ્રહ. અલગ અલગ ગેમ્સ છે. ગોળાઘર, નિશ્ચિત સ્થાન ને ત્યાં આ સિક્કાઓ છે જો. અગિયાર નંબર તો ગુજરાત સલ્તનત કાળનું છે. રોડશેલ બેંગલ વિથ ઓહ, broad with grooved lines, cell bangles, fragment broad and polished up. એ ખાલી એનું જ બતાવે. હા શું છે? Bangles છે. આ એક પ્રકારનું બેંગલ જ છે. 11 થી 14મી સદી 13મી સદી સુધીનું છે. એ તો જોયું ને. બહુ ઓછા ટાઈમ માટે હાલન ચાલુ કર્યો છે ચાલુ શો और समाज मतलब का બધું ફૂલ पूरा चक्र को हराता है। બેસી જજો નીચે इसीलिए आज चाचा हम पास- आपको पाछी- पाछी- बताएं पाछी। 15 મિનિટ થશે હજુ હા मसाज में। જો આ બધા કે ચરુ મળે એ આ છે જો કોડિયો આ કોને ભેગી કરી હે આટલી કોડીઓ? એ વખત તો પૈસા કોડીઓથી થતું એટલે પૈસા હશે ને. કાવદી હોડ શેલ આંબા ગાર્ડ કોઈને ભેગા કર્યા હશે જો મારે જેવો હશે એને, પણ બાપડાનો વપરાણા જ નહીં. એ તો એવું થાય. હેડકા શોમાં જતા રહીએ હેડ. એ રહ્યા પેલા નહીં જવું નેક્સ્ટ ટાઈમ થઈ ગયા છે
लाभ की कम थी। लोगों की जरूरतें और आबादी इतनी कम थी कि ये बाजार हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं लगते थे। आज भी कई गांवों में बाजार हफ्ते के हफ्ते ही लगते हैं। ऊंचे हिमालय की शिलाजीत है, गहरे सागर का काला मोती है, रेगिस्तान का ऊंट कटारा, तिरकुटा तिरफड़ा विच पीपल भी इसमें होती है। जवासा धमासा और उषा के साथ नीलाचल की कूड़ा छाल और खैरमूल है। वंशलोचन काकड़ सिंगी नगर मोथा के संग बंगाल की लवंगलता का फूल है। इनको वक्रमूत्र में घोला और फिर डाला है गीर गाय का घी। जिंदगी मीठी हो जाती है जिसने ये कड़वी दवाई पी। मिलाकर जम्मूद्वीप की 1000 जड़ी बूटियां मैंने है बनाई लाख लोगों की ये एक दवा। क्या कौन कौन भिक्षु? बात तो भिक्षु मैं कुंभकार और वो कपड़े की दुकान पर तंतु है और वो शंखी चूड़ियां बनाने वाला शंखिका और उसके पीछे बिल्कुल भी जहाँ वो लकड़ी बेचने वाला पटका और जो देखो ये मदनवाल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन है ये? ब्राह्मण। इन्हें हम नारद ब्राह्मण कहते हैं। हमारे वडनगर के आए हुए सोने से। ये मछली जैसे लंबे घड़ों में है क्या? ये मछली जैसे लंबे घड़े समुद्र पार से आते हैं जिनमें हम तेल, दवाई, इत्र और सोना भरकर लाते हैं। सुना? हाँ, और अगर एक बार चखी चीज हमारी तो भूल जाओगे दुनिया सारी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। कौन है? जैन मुनि पास के देरासर में रहते हैं। नौघनी मछली के आकार के इन घड़ों में तरह तरह के द्रव्य, दवाएं और तेल जहाजों में लगकर दूर देशों से आया करते थे। हरम की वल्लभी पर हुए हमले के बाद भी ये बाजार धड़कता रहा, बल्कि शहर में अब एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, सोलंकी राजवंश का। अरे चूड़िया लीजिए, चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया। चले आइए आइए आइए, बोलो क्या दूं? चूड़ी, कंगन, हार, माला, लटकन, झूमर या पटकियो। कंगन दिखाओ। लीजिए। वाह, क्या चमक है इस कंगन की। क्यों नहीं होगी, जरूर बंगाल से आया होगा। अरे बिल्कुल कल ही आया है। राजा भीमदेव सोलंकी के आने से कंगन क्या पूरा गुजरात चमक गया है। अरे ये कीर्ति तोरण नहीं देखा तुमने? देखना क्या सुंदर राजधानी बनकर तैयार होगी पाटन में। अरे वो तो बनेगी, आप ये देखिए ना। और कंगन नहीं चाहिए? कंगन नहीं चाहिए? नहीं। तो ये देखिए कांच की चूड़िया, ले जाइए अपनी लुगाई के लिए। कांच की चूड़िया? हाँ, नई आई है बाजार में। ये कांच की चूड़िया और मोढेरा का मंदिर दोनों दर्पण से चमकते हैं। ले लो मैं। हाँ हाँ, पसंद आई है तो ले लो। दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कम है। अरे ये रख लीजिए। हाँ, ये हुई ना बात, लीजिए। पर आइएगा जरूर वापस, ऐसी चूड़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। पुराने जमाने में ये लोग सिर्फ घोड़े देखते थे, अब तो जरा देखो वहाँ सब। ये लोग ईरान तुरान से आए हैं ना? हिंदी में कहे तो भाषा से हिंदुस्तान में, जैसे कि मुगल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बाबा आप हमेशा इनको प्रणाम क्यों करते हो? ये वडनगर के नागर ब्राह्मणों के कारण ही तो हमारे संस्कार बचे हैं, वरना के पूरा राकेश्वर क्षेत्र खरीद जाता। शंख के और कड़े नहीं है? बेटा अब तो बस जो है यही है। देखो इसमें कहीं एक आध चूड़े मिल जाए तो बहुत है, बाकी खड़े तो बिल्कुल नहीं। बेटा ये सब जो अभी बन रहा है ना, हाथ ही दांत का है, बहुत महंगा भी है और इसके लिए इतना बड़ा जानवर मारा भी जाता है। इससे अच्छे तो मिट्टी का ही थे। बाबा अरे रुकना। बाबा इतने चमकीले बर्तन पुराने वाले कहाँ गए? बेटा समय बदलता रहता है। तो ये समय कब तक बदलता रहेगा बाबा? हरदम सेनाएं मुगल और पठान को हटाने के लिए मराठे आ रहे हैं। सन 1736 में मराठों ने वडनगर पर हमला किया और इसका नतीजा क्या हुआ देखते हैं। मंदार बेटा, मंदार बेटा कहाँ चले गए थे तुम? देखो सब नगर छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी चलना है बेटा। हमारे हटकेश्वर महादेव जी का क्या होगा दादा? वो सबके रक्षक हैं। अपनी रक्षा भी कर लेंगे। किंतु मराठे तो अपने हैं, फिर उन्होंने क्यों? राजा राजा केवल राजा होता है, वो अपने और अपने स्वार्थ के आगे सब भूल जाता है। तो क्या हम अपने वडनगर वापस कभी नहीं आएंगे? आएंगे, किंतु तब यह वृद्ध नगर वो नहीं रहेगा जो आज है। कोई और आएगा जो इसे बदलेगा, इन्हें बदलेगा। समय का चक्र सदा ऐसे ही चलता है बेटा, किंतु हमारा यह वडनगर सदा जीवित रहा, रहेगा और आगे बढ़ेगा। यही हमारा इसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। सही कहा था उस नागर ब्राह्मण ने। मराठों ने भी इस नगर में शिक्षा का प्रसार किया तो पुरातन नगर के नवीनीकरण का काम भी। और जब समय फिर बदला तो पूरे देश के साथ वडनगर भी नए स्वतंत्र भारत देश का हिस्सा बन गया। इसीलिए तो कहा है, अनादि अनंत नगर है अपना वडनगर। તમે ફર્સ્ટ એક ટાઈપ કરો છો ને લાસ્ટમાં એસ્ટિમેશન સાઈડ છે તો અહીંયાથી થોડું સ્પેસ કરજો કે જેથી આગળ તમે જોઈ શકો એટલે હું બહુ હતું લે આપણે લેટ આવ્યા એમને હું જોયું હશે હું એ કહું 1.5 કલાકમાં
ના ના આ તો 2 વખત જવા આવ્યું છે. હું એમ કહું એટલે જેમ ના ખબર પડે તો આ બધું જોઈ હા મને તો હિસ્ટ્રીમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે હું તો અહીંયા આખો દિવસ કાઢી આપણે ને એસીમાં રહેતું ખરા કાલે કોઈ વાંધો નહીં કાલ હું આખો દિવસ હોય કાઢી. નેક્સ્ટ શનિ રવિ જો આ તો શું છે અહીંયા કાનનું છે ભાઈ શંખના ટુકડા ઓ માય આ તો છે ડિફરન્ટ આપણે તો અડધું તો સ્કીપ કરી દીધું તો. એક વાગે આવ્યો તો કેટલું જોવાનું એકદમ નેક્સ્ટ સેટરડે ઓ માય ગોડ આ શું છે રે કોઈને મારવા માટેનો હથિયાર છે મને લાગે. આ જે ગેમ્સ છે ને એ બહુ જોરદાર હથિયાર છે આ કોઈ પ્રકારનું. ચાવી આ એક પ્રકારની ચાવી છે. ઓહો એટલી બધી પબ્લિક આવશે પાછી. ઓહો આ હોય છે બહુ વધારે થઈ ગયું. ઉપકરણ મળી ધાતુ અનુભવ કરો. અચ્છા આ બધી વસ્તુઓ ઉત્ખનનમાં મળેલી છે એમ. અમેઝ ખરેખર વસ્તુ જો પેલી તો પોથી મળી છે. કોઈની પોથી હશે એમાં હિસાબ કિતાબ લખ્યો હશે. 2 રૂપિયા પહેલાંના બાકી છે 5 રૂપિયા પહેલાંના બાકી છે. પછી છીણવાનું બી જૂના જમાનામાં અત્યારે કરતા સારું જો છીણી કરવાનું આયરું છીણવાનું જોરદાર અમે જે પથાણા ખોલવાની બહાર પેલી પોથી હું લખ્યું મારે તો એ જોવું છે. ખોલીએ આ બધું જૂના ઘરોમાંથી આ લોકોએ આલ્યું હશે મને લાગે. જે જૂના ઘર અહીંના હશે ને એમને અહીંયા દાન આપ્યું હશે આપ્યું હશે પૈસાથી. નકર આટલી એક ટુકડા રાખેલા હશે તો પછી કાચી દાંતની બંગડીઓ. હા તો જો એક ટુકડા આટલા ઇંચના ટુકડા રાખેલા આ તો શું છે દોત ખોતરવાનું. કોડિયા જો આવા કોડિયા પહેરતા હતા લોકો એમ. શાનદાર કુબેર ભંડારી છે. કાનમાં પહેરવાનું નાકમાં પહેરવાનું ફટાફટ જોઈ લો નેક્સ્ટ ફાઇનલી સોનું મળી ગયું. જો ખજાનો મળી ગયો છેલ્લે વડનગરમાંથી. ખર્ચો તો કરે છે હા ભાઈ 400 કરોડ. પેલા ધર્મેશભાઈ આના કે લાવવાનો ખર્ચો 50 લાખ પછી પેલો મારા નહીં. હા પેલો 50 લાખ નહીં કે
500 કરોડ. हाँ 400-500 करोड़ 500 અડજે તું બી આપણો લેવાય છે એકાદું. એક મિનિટ. જો આ સોનાનું છે, આ સોનાનું છે. મિનિમમ 6 કલાક જુઓ આયરી ફરવા. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવું ચાલે ના ઉતારવા. હા એ તો હવે નાઇફ છે, અમે આપણા જોડે ક્રેકર, સ્પૂન, નાઇફ, લેમ્પ. આ હું મળ્યું કોઈન મોલ્ડ. तो गाइस आप देख रहे हो एक बुद्धिस्ट विद्यापीठ हो सकती है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है और है यहाँ ही गाइस एक मानव कंकाल मिला है जो समाधि की या ध्यान मुद्रा में है, वो मिला है। तो देखिए ये वडनगर का अभी जो साइट है सबसे बड़ी साइट, यहाँ से देखिए आप इसकी इमारतें, इसकी ईंटें दिख रही है, मिल रही है और अभी भी इसका उत्खनन जारी है। यह शर्मिष्ठा लेक, यहाँ से एक अच्छा व्यू मिल जाता है। एक पूरा लिंक रोड यहाँ से बनेगा ताकि आप बस में बैठो और उतरो तब तक आपको वडनगर की सारी साइटें एक ही राउंड में दिख जाए, एक ही राउंड में मिल जाए देखने को। तो गाइज़ देखिए सबसे बड़ा सबूत है इतिहास का। जो आ બધું મળ્યું હોય બધું વિચાર કર। આ એક આખી મોટી ઇમારત, આખી એક મોટી બિલ્ડિંગ અરે ના કઈ આ બધા કઈ જોડે જોડે પેલા ઘર નહીં, એમ આખી મોટી ઇમારત છે। અને એ ઇમારતે શું છે એમ બી મને ખબર છે બરાબર। આ એક કોલેજ હતી, વિદ્યાપીઠ, बुद्धिस्ट विद्यापीठ।